नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, हमें हक़ का हक़ होना दिखा दे और उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, हमें बातिल का बातिल होना दिखा दे और उससे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। And today we are continuing with Surah Nisa. We had done till ayat number 21, so inshallah we're starting ayat number 22 and 23. Bismillahirrahmanirrahim. Do not marry those women to whom your fathers were married except that which is past. Undoubtedly this is lewd, abominable and an evil path. Forbidden for you are your mothers, daughters, sisters, father's sisters, mother's sisters, brothers' daughters, sisters' daughters, mothers who suckled you, suckling sisters, mothers-in-law, and those stepdaughters in your care whose mothers you have cohabited with. If you have not cohabited with them, there is no sin on you should you marry their daughters. And forbidden are the wives of your sons who were born of you, and that you join two sisters in marriage except what is past. Without doubt, Allah is most forgiving, most merciful. Okay, so like in the earlier surahs of Nisa, we had done the Shariat of the laws of inheritance. Now we are doing the Mehram Rishte according to Shariat. And this is very important to understand. सबसे पहले आयत नंबर 22 में कहा जा रहा है, you see in Ahle Makkah, they used to claim that they are on Deen Ibrahim. And yet, they kept all of the rishtas haram that are haram in the Islamic Sharia. So they didn't marry their sisters, for instance. It was haram even in their culture. There were two nikahs that they did from the haram rishtas. One was that they married their stepmothers, and the other was that they married two sisters together at the same time. This is not allowed in Islamic Sharia. So यहाँ पे कुरान के अंदर इसकी शरीयत आ गई कि you cannot marry your stepmothers. And मैंने आपको बताया था ना, they inherited the stepmothers और फिर उनके साथ निकाह कर तो लेते थे, but even in their माशरा, in their society, it was considered dirty. उनको भी बुरा लगता था. एक अंदर से गलाजत आती है. एक नाउज़ुबिल्लाह माँ के साथ निकाह करना is not something that is naturally acceptable in any society. This is शरीयत इज ट्रूली ह्यूमन फितरत के ऊपर नेचुरल चीज़ है कि आपको एक चीज़ गंदी लगती है, अंदर से गंदी लगती है. तो इस्लाम ने इसको आके हराम कर दिया. इस निकाह को निकाह मकात कहते थे in Makkah. And the other thing that is being now listed in ayat number 23 are the mehram rishtas, and these rishtas are those that nikah cannot be done with them. This is very important to understand. ठीक है? अच्छा, इसमें से कुछ you will realize it doesn't matter how corrupted or twisted or disgusting societies are. ये जो महरम रिश्ते यहाँ listed हैं इस्लामिक शरीयत के अंदर, even naturally people don't want to get married to these rishtas. People don't want to get married to their sisters or their mothers, na'uzubillah. Even naturally they don't want to. But there were some ancient pagan cultures where siblings were married, and they were married in Rome, in Egypt, even in Iran. Within the royal families, na'uzubillah, they used to marry the brothers and sisters because they used to say that our bloodline is the most pure. We are so high and we are so pure that हम अपनी नस्ल नहीं, वो नस्ल और नसब खराब नहीं कर सकते, तो नाउजुबिल्लाह बहन भाइयों की ये शादी करवा देते थे. Other than that, 99% of the time, these mehram rishtas are 100% pure. फितरत के ऊपर ये बात बैठती है. Natural human instinct यही है कि you don't want to marry them and you don't have a lust towards them. अच्छा, अब ये रिश्ते क्या हैं? देखें, why is this? इसको भी समझ लें. There should be no fahashi within the household. There should be no lust between, na'uzubillah, the brothers and sisters within a household. तो इस्लाम ने naturally भी लड़के na'uzubillah don't look at their sisters with, even when they have hormones in their body, even when they have this urge growing within them. एक बहन जो है वो घर के अंदर पूरा दिन साथ होती है, लेकिन लड़के की फितरतन नजर ऐसी गंदी बहन की तरफ नहीं जाती.
So this is natural, pure fitrat that the Shariat is describing over here. And हराम कर दिया किसके लिए? निकाह के लिए. जब मदर्स को हराम किया, स्टेप मदर्स को हराम किया, एंड ग्रैंड मदर्स, ये मैं आपको एक्सटेंशन बता रही हूँ इसी शरीयत के अंदर. जहाँ मदर्स है, देन स्टेप मदर्स आल्सो कैन नॉट हैव निकाह डन विद देम, एंड ग्रैंड मदर्स आल्सो. अगर डॉटर्स से निकाह नहीं हो सकता, नाउजुबिल्लाह, ये शरीयत के अंदर है, डॉटर्स से निकाह नहीं हो सकता, तो बाय एक्सटेंशन ग्रैंड डॉटर्स आर आल्सो महरम. ठीक है. देन सिस्टर्स आर महरम, इवन स्टेप सिस्टर्स आर महरम. ठीक है, क्योंकि वहां पे मैंने आपको बताया था इन देयर कल्चर देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टेप सिस्टर्स, 2 मैरिजेस, 3 मैरिजेस. फिर बताया गया फादर सिस्टर यानी फूफी. अच्छा, अब फूफी, फादर सिस्टर इज महरम, इवन द ग्रैंडफादर सिस्टर इज महरम, यानी दादा की जो बहन है वो भी महरम होगी बाय एक्सटेंशन, वो भी फूफी लगती हैं. मैटरनल ग्रैंडफादर की साइड से वो फूफी लगती हैं, या नाना की बहन वो भी फूफी लगती है, वो भी महरम होगी. सो एनीथिंग व्हिच इज फादर्स और ग्रैंडफादर सिस्टर्स, ये भी सब महरम हो गए. एंड ऑन द अदर साइड मदर्स सिस्टर्स, सो खालाएं, एंड ग्रैंड मदर सिस्टर्स, खाला नानियां जो हैं, या खाला दादी की जो बहन है, ये सब महरम रिश्ते हैं. ठीक है. एंड नीसेस, नीसेस के अंदर क्या आ रहा है? ब्रदर्स डॉटर्स एंड सिस्टर्स डॉटर्स, बट ऑल्सो बाय एक्सटेंशन देयर डॉटर्स. सो इवन द नीसेस डॉटर इज महरम, बिकॉज उनके साथ निकाह नहीं हो सकता. हदीस का मफहूम आता है कि जो रिश्ते नसब से महरम होते हैं वही रिश्ते रजात से भी महरम होते हैं. अच्छा, ये इस आयत में आ रहा है. द सकलिंग मदर्स हु सकल्ड यू, द सकलिंग सिस्टर्स, यानी रजात का मामला ये होता था इन अरब. व्हेन अ बेबी वाज बोर्न, दे हैड वुमेन हु यूज्ड टू ब्रेस्ट फीड दीज बेबीज जस्ट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग. लेकिन जब ब्रेस्ट फीड कर दिया, जिस माँ का दूध उन्होंने पी लिया, वो महरम ऐसी होती थी जैसे सगी माँ. ठीक है. So by the Shariat of Islam, now for the woman who has breastfed the baby, all of these rishtas that surround her means she is महरम. उसकी जो बहनें होंगी वो भी खालाएं लगेंगी, वो भी महरम होंगी. उसकी जो नीसेस होंगी वो भी महरम लगेंगी. उसकी जो बेटियां होंगी वो भी महरम लगेंगी. So all of the rishtas that apply as महरम to your own mother apply as महरम when there is a breastfeeding mother involved, even then. ठीक है. And the same list that I just explained to you, this same list is applied to the रज़ात की माँ जो breast feeding mother होती है. और इसीलिए within Arab they used to take care of नसब. नसब होता है कि किसने किसको दूध पिलाया, lineage चल रही है, और साथ में पूरा उनके पास लिखा हुआ होता था कि किसने किसको दूध पिलाया. This was very important because देखिए वो ये लिस्ट इसलिए होती थी कि कहीं जो एक, फॉर इंस्टेंस देयर इज वन मदर हु इज फीडिंग वन बेबी. अब अलग अलग घर से आते थे इनके पास बच्चे फीड होने के लिए. ये इनका एक तरह से इट वाज एन ऑक्यूपेशन. These women used to feed babies from different households and they used to get paid for it. So एक घर से आई एक लड़की, एक घर से आया एक लड़का. अब it had to be written down because the girl and the boy that she has fed are now brother and sister. इनका निकाह आपस में कभी भी नहीं हो सकता, just because they have drank milk from the same mother. समझ में आ रही? तो अब ये बहुत जरूरी था. This all had to be written down. Once there was a woman who came to Medina, and when she came to Medina, there was a couple that was married. She saw them and she said, "These people can't be married. इनका निकाह तो तोड़वाना पड़ेगा, इसलिए कि मैंने इन दोनों को दूध पिलाया." और उसी वक्त हुकूमत की तरफ से उनका निकाह तोड़वा दिया गया था. Because it is haram. The breastfed brother and sister are exactly the same as if they were real brother and sister. वो एक दूसरे के लिए महरम है. ठीक है. अच्छा, फिर wives, also your wife's mother is mahram, your wife's grandmother is mahram, and even if you divorce this wife or this wife dies, her mother and her grandmother will remain mahram for life for this man. ठीक है. अच्छा, फिर रबीबा स्टेप डॉटर को कहा जा रहा है फ्रॉम द वाइफ. ठीक है. सो शी विल बिकम, रबीबा कहते हैं
a man married a woman and this woman has a stepdaughter. ठीक है, she has a daughter. इस आदमी की ये स्टेप डॉटर बनी, ये रबीबा है, and she will only become महरम the minute he consummates his marriage. निकाह हो गया. When he has consummated his marriage with this woman, his wife, then this girl now becomes his daughter for life. She becomes his stepdaughter for life. She becomes a mahram. If there has been a nikah, but they have not consummated the marriage, means nikah हुआ, रुखसती नहीं हुई और निकाह टूट गया, फिर ये आदमी इस औरत की बेटी से शादी कर सकता है. The to-be stepdaughter was actually not made his mahram because of the fact that the nikah was never consummated. It broke off before it was consummated. In that case, this is what ayat number 23 is saying. If in that case, he can marry the daughter. अच्छा, हलीला कहते हैं the real son's wife, जो daughter-in-law होती है, not adopted son, जो असल अपने स्पर्म की औलाद जो बेटा होगा, उस बेटे की जो बीवी है, she is mahram for life. For the father-in-law, even if his son dies, even if the daughter-in-law gets divorced, it doesn't matter. She will remain a mahram for the father-in-law. ठीक है? और फिर किस चीज से मना किया गया? Two sisters together in a nikah. This is not allowed. ये हराम है इस्लामिक शरीयत के अंदर. ठीक है? हदीस का मफहूम आता है कि ये भी हलाल नहीं कि फूफी भतीजी या खाला भांजी को बेहक वक्त एक निकाह में लिया जाए. ठीक है? क्यों? ये क्यों? देखें, इस्लाम, आई टोल्ड यू इट्स प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक. अब खाला भतीजी का बहुत खूबसूरत रिश्ता है एंड लव का रिश्ता है, और सौतन का कैसा रिश्ता है? अगली कंपटीशन, राइट? अगली इल फीलिंग्स टुवर्ड्स ईच अदर. So why would you take a blood rishta, walaikum salam, a blood rishta that is beautiful, why would you put it into the same nikah with the same man? Why would you create hatred between them or competition between them? तो फिर क्या बताया जा रहा है कि इनका निकाह आपस में, यानी एक साथ, एक तो ये है ना कि शरीयत is the two sisters should not be taken in one nikah, but the hadith is telling us even खाला भतीजी को भी एक वक्त एक निकाह में मत रखें. ठीक है? And if the sister is divorced or she dies, then the man can do nikah with the other sister. That is halal. Haram hai, at the same time they cannot be in the same nikah. ठीक है? And another misconception, अब इसी चीज को लेके देखिए, हमारे कल्चर में misconceptions बहुत हैं. And as we read the Quran, one of the purposes of reading the Quran is to clarify these misconceptions. एक misconception है कि जी दो बेटियों की शादी एक घर में नहीं होनी चाहिए, और फिर वो कहते हैं क्या कि जी वो भारी हो जाती है. हमारे यहाँ तो भारी, हल्का, शगुन, ना शगुन. Whenever you hear these words, they should actually be key words for you. आप समझ जाएं ये हिंदू कल्चर से आया है, क्योंकि इस्लाम के अंदर ये भारी हल्के वाला कोई वर्ड आपको मिलेगा ही नहीं. हदीसों के अंदर नाउजुबिल्ला, ना कोई दिन भारी, ना कोई दिन मनहूस, ऐसी चीजें. ये जो शगुन लेना है ना, बैड ओमेंस या डराना या सुपरस्टिशन लेना, आप उसी वक्त समझ जाएं कि इसका हदीस से कोई लेना देना नहीं, because it's not the lingo of Islam. तो फिर ये भी गलत कॉन्सेप्ट है. ठीक है? Two sisters can be married to two separate brothers in the same household. अच्छा, फिर कहा जा रहा है कि ये जो दो शरीयत आ रही है, don't marry your stepmothers. उसके बाद कहा जा रहा है except what has been done before. ठीक है? Because at the time that these ayats did come down, there were some people who had married their stepmothers. ठीक है? इस आयत से पहले मैंने कहा वहां पे मक्का में ऐसा होता था, कम होता था लेकिन होता था. अब ये क्या बता रहा है कि ये शरीयत does not apply backdated. यानी अब जो हो गया है, you don't have to, इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे जो बच्चे पैदा हुए नाउजुबिल्ला अब वो नाजायज करार दे दे. वो इस एक्सट्रीम पे भी जा सकते थे. तो ये कह दिया कि अब दिस इज फॉर फर्दर नोटिस. इसका मतलब ये कि इफ यू हैव मैरिड टू सिस्टर्स, अगर दो बहनें हैं एक वक्त में निकाह में, अब एक को तलाक दे दो. शरीयत हैज टू बी अप्लाइड. You can't continue keeping, so it's further notice, not backdated. But if one of those sisters has a child from you, that child is not going to be illegitimate. The Shariat applies from this date forward. इस तरह से ये लेके चलता है इस्लाम. ठीक है?
एंड देखिए मैंने आपको क्या बताया था, प्रोटेक्शन ऑफ इस्लाम हैज कम डाउन फॉर द सैंक्टिटी ऑफ वेल्थ, फॉर द सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, जान, तहफ़्फ़ुज़ माल, तहफ़्फ़ुज़ जान, तहफ़्फ़ुज़ अकल, सैंक्टिटी ऑफ इंटेलिजेंस एंड सैंक्टिटी ऑफ नसब. बहुत खूबसूरत दीन है ये. दिस दीन प्रोटेक्ट्स योर लीनिएज. एक इंसान का ह्यूमन राइट है, उसको पता होना चाहिए उसका बाप कौन है. इस चीज को इस्लामिक शरिया लॉ प्रोटेक्ट कर रही है. इसके अंदर घपला मत करो, इस लीनिएज को खराब मत करो. डोंट मैरी योर स्टेप मदर, डोंट मैरी योर महरम रिश्ते, नस्लों को खराब मत करो, ठीक है. एंड लाइक आई सेड, फितरत के ऊपर ये बात बैठती है. हमारे घरों के अंदर जितने भी बच्चे, चाहे हमारे घरों के अंदर इस्लामी माहौल हो या ना हो, naturally a boy does not look at his sister with a dirty nazar. It is so beautiful कि इस्लामी शरीयत जो है ना, वो फितरत, ह्यूमन नेचर के ऊपर बैठती है. बल्कि कभी ऐसा भी होता है कि छोटे होते हैं भाई और बहनें बड़ी होती हैं, और वो नेचुरली वो जब बाहर जा रहे होते हैं वो कहते हैं दुपट्टा ले लो, और वो बड़ी बहनों का दिल करता है एक थप्पड़ लगाओ, छोटे क्यों तुमने मुझे बोला. लेकिन वो है, वो बच्चा जो है नेचुरली प्रोटेक्टिव है अपने महरम रिश्ते का. यानी वो उसको साफ नजर से देख रहा है और वो चाहता है कि कोई बाहर वाला उसको गंदी नजर से ना देखे. ये नेचुरल है. तो ये जितना लिस्ट मैंने आपको बताई है ना कि सिस्टर्स एंड मदर्स एंड खालास एंड ये नेचुरली महरम रिश्ते हैं. देयर इस्लाम इज प्रोटेक्टिंग द हाउस होल्ड टू बी क्लीन एंड लस्ट फ्री. नाउजुबिल्ला, कितना अजाब होता ना अगर घर के अंदर ही अपने भाई की गंदी नजर से बचना होता, तो बाहर जाके तो आपको बचना ही है. तो अल्लाह पाक ने जो महरम रिश्ते दिए बहुत प्रोटेक्टिव और बहुत खूबसूरत दिए ये रिश्ते. अच्छा, अब तहफ़्फ़ुज़ नसब, प्रोटेक्शन ऑफ लीनिएज, ये इस्लाम कैसे करता है? बाय दिस शरीयत. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. बाय दिस शरीयत, लेट मी, जैसे आज IVF का जमाना है, ठीक है, एंड ये कंसेप्शन जो है, वूम की, बेबी की कंसेप्शन आउटसाइड ऑफ द मदर्स वूम की जाती है, ठीक है. उसके लिए भी फिक ने शरीयत से मसला निकाल दिया है दैट व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड, ठीक है. द एग, द स्पर्म एंड द वूम कैन नॉट हैव एन एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन while doing IVF. There is no sperm donor, there is no egg donor and there is no surrogate mother. वूम भी किसी और की नहीं होनी चाहिए. इतना फर्क पड़ता है नसब के ऊपर. आप सोचिए इस्लाम कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है कि वूम भी किसी और की होगी, उसके अंदर भी गड़बड़ हो सकती है. ये नहीं हो सकता. Surrogacy is not allowed, donor eggs is not allowed, donor sperms is not allowed. What is allowed by fiqh of Sharia and the ulama is that if conception is difficult, then naturally, then they can externally impregnate the egg with the sperm of the same mother and father and put it back into the uterus without having any external factor involved. Having said that, IVF के अंदर, so everything has to be the couple's own personal sperm, egg, womb. Everything has to belong to this couple. But also when you're doing IVF, how much can you trust the lab and the doctors? यहाँ गड़बड़ हो सकती है. यहाँ 100% साइंस के अंदर गड़बड़ is possible because what they do is they don't take one egg. They actually make a couple of एग्स एंड स्पर्म्स की वो ट्राई करते हैं ना कि कितने फर्टिलाइज होंगे. तो उनके पास तो 5 एग्स होते हैं. अब 5 के 5 फर्टिलाइज हो गए. एक उन्होंने इंसर्ट कर दिया वूम में, 4 उन्होंने क्या किया, 4 वो फ्रीज करते हैं. दे फ्रीज दोज 4 एग्स एंड वूम्स, ठीक है, जस्ट इन केस. वो कहते हैं इन केस यू हैव अ मिसकैरेज एंड वी नीड टू री इंसर्ट दिस इनसाइड यू. तो कहते तो वो आपकी भलाई के लिए है, बट दे कैन इम्प्लांट दैट इनटू एनीबडी. उनके पास एक डेस्परेट मदर आई, उसने कहा आई रियली वांट अ बेबी. दे कैन. अब ये तो एथिकल, हाउ एथिकल इज द डॉक्टर एंड द लैब, दैट इज व्हाट इट इज. वरना इसके अंदर रिस्क फैक्टर जो है वो है और बहुत ज्यादा मॉरल और एथिकल इश्यूज IVF के अंदर आते हैं. बहरहाल इस्लामी शरीयत ने इसकी इजाजत दी हुई है, ठीक है. और why is this so protected? इसलिए कि इससे महरम रिश्ते खराब हो जाते हैं.
ये जो स्पर्म डोनर्स हैं ये सारी दुनिया में स्पर्म देते फिरते हैं. वेस्ट के अंदर क्या होता है, यू हिट 40, मोस्टली दिस वुमेन आर नॉट मैरिड बिकॉज दे आर करियर ओरिएंटेड. व्हेन दे हिट 40 दे रियलाइज दैट ओ नाउ माय एग्स आर बिकमिंग वीक एंड दे आर डाइंग ऑफ. आइदर दे गेट देयर एग्स फ्रोजन or they get themselves artificially impregnated with a donor sperm. अब इतना बड़ा जुल्म है कि 20 साल बाद उनको तो नहीं पता that a brother and sister are getting married. They don't know. If the same sperm donor has given sperm to half the town, how do they know कि बहन भाई कौन है? तो नस्ब गड़बड़ हो गई and Islam comes to protect नस्ब. Islam protects the lineage. ठीक है? And देखें ये भी एक हमारे यहाँ बहुत मिसकॉन्सेप्ट है. Islam does not say that when you are married you have to have a child. ये हिंदू कॉन्सेप्ट है. बच्चा नहीं हुआ, हाय बेचारी बच्चा नहीं हुआ, अब क्या होगा, जिंदगी का कोई मकसद नहीं होगा. इस्लाम के अंदर ऐसा कोई, I told you, I found Islam the most forward thinking deen in the world. ये सारी बातें सुनाने की जो चीजें हैं ये इंडियन कल्चर है. बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा had no child. After Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam passed away, our mothers, the wives of the prophets, were not allowed to remarry. So she had no husband, she had no child, and she was very young. तो क्या हुआ? वो depression patient बन गई? नहीं. She went on to be one of the greatest scholars and orators of Deen Islam. She went on to give some of the most written ahadith के references बीबी आयशा से मिलते हैं. उन्होंने अहदीस कोट की, उन्होंने बुक्स लिखी, वो स्कॉलर बनी, ओरेटर बनी, उन्होंने सबसे ज्यादा दीन की तबलीग की. हाँ, तबलीग कैसे की जाती है देखें आजकल जी, मतलब वही ये जो अहदीस बाद में कलेक्ट हुई थी ना, जो अहदीस उन्होंने आगे मरवी की, नॉलेज को स्प्रेड किया. even private matters of their married life, of how they used to bathe together, for instance. These are things that only come from Bibi Aisha Raziyallahu Anha, because she wanted these ahadith and these sunnats to be preserved and given forward, ताकि हमें पता चले. ठीक है, तो उन्होंने क्या अपनी जिंदगी जाया कर दी? नहीं. अच्छा, फर्क क्या है? She was an amazing orator. अपने टाइम की वो कहते हैं कि जी बीबी आयशा का दर्स होता था, बस लोग मेस्मराइज होते थे. दर्स देने का तरीका क्या था? उस वक्त एक तो पूरा निकाब होता था, and then there used to be a wall between Bibi Aisha and the male students, hundreds of male students. There used to be a wall. सामने एक दीवार या एक चादर होती थी, तो they could never see her. ये तरीका है दीन पढ़ाने का. मैं अगर आज सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, इसीलिए सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ कि if I wanted to teach male students, I'd need a wall. फिर मैं लेडीज को आगे लेकर आऊँ. अच्छा, फिर उसमें भी बड़ा मसला है. चले मेरे आगे तो बॉल होगी, दूसरी लेडीज, और पीछे जो बॉय स्टूडेंट्स होंगे, इधर ही मसला क्रिएट हो जाएगा. सो इट इज ईजियर राइट नाउ फॉर अस टू सेपरेट एंड नीड टू टीच वुमेन एंड मेन टू टीच मैन. बट उस वक्त, उस जमाने में इस चीज का बहुत एहतमाम होता था. किसी ने किसी भी मर्द से बात करनी होती थी, किसी आलिम से आपने मसला पूछना होता था, आप जाके पर्दे के पीछे से पूछ सकते थे. This was done then and it was very easy and it was very applicable. अच्छा, पर्दे से क्यों? अब आप कहें कि नहीं जी आप तो कुरान पढ़ा रही हैं, जो पढ़ने आ रहा है लड़का वो भी तो कुरान ही पढ़ रहा है, तो बहुत ही नेक माहौल है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं हो सकती. तो रबिया बसरी का कॉल है कि हसन बसरी कुरान पढ़ा रहे हो, रबिया बसरी कुरान पढ़ रही हो, खाना काबा के अंदर बैठ के, तब भी शैतान नहीं छोड़ेगा. दो हस्तियां जो वलीउल्लाह है, वो खाना काबा के अंदर बैठ के कुरान पढ़, शैतान उधर भी आके अटैक करेगा, कोई ना कोई चीज क्रिएट करने की कोशिश करेगा, नाउजुबिल्लाह. तो कहा देखे, इस्लाम रिमूव्स यू फ्रॉम एनी एक्सप्लोसिव सिचुएशन. आग और तेल को मिलाओगे, आग लगेगी. फायर, मैच स्टिक एंड गैस. इस्लाम कहता है, शरीयत इसको हटा देती, सेपरेट कर देती है, ताकि एक्सप्लोजन हो ही नहीं. अपने सेग्रीगेटेड सेपरेट उसके अंदर आप चलें. अच्छा, अब हम चल रहे हैं आयत नंबर 24 से. अल्हम्दुलिल्लाह वी आर स्टार्टिंग पारा नंबर 5. ठीक है, ayat number 24 and 25. Forbidden to you in marriage are married women except those whom you own,
Allah has ordained these injunctions upon you. Lawful for you are all women besides these that you seek with your wealth and chastity, not lechery. Those from whom you seek to derive benefit, give them their specified dowry. There is no sin on you should you agree on something else after the specified amount. Verily, Allah is all-knowing, the wise. Dowry over here does not mean jahez. There was only one term for dowry in Islam, that is meher. The only wedding gift is from the man to the wife, and that is meher. That is the Islamic Sharia. तो हम ये ना समझें कि ये जो जहेज की लानत है, that is being mentioned na'uzubillah in the Quran. It has nothing to do with our Islamic ways. अच्छा. Now, who can you not marry? From the women, even a woman, if a woman is already married to another man, then you cannot marry her, except in one case. And that case is, we are going to study these ayats, but they're not applicable today because slavery has been abolished. ठीक है? ये होता था, एक slave woman है जो war में आ गई. ठीक है? And in the battlefield she has been captured and she's been made a prisoner of war. ठीक है? अब क्या होता था? For instance, women used to be soldiers also. ये slave women या पैरामेडिक्स में वो काम कर रहे होते थे, किसी तरह, या कुक्स होते थे. अब वो जंग के अंदर, शी इज अ स्लेव वुमन एंड शी हैज बीन कैप्चर्ड एंड ब्रॉट, समझे, इनटू द इस्लामिक कम्युनिटी. द मुस्लिम पीपल वर द विक्टर्स एंड दे ब्रॉट इन द स्लेव गर्ल. अब क्या होगा? मुस्लिम गवर्नमेंट हैज 3 ऑप्शंस. दे कैन फ्री द स्लेव, दे कैन एक्सचेंज द प्रिजनर्स, कि इनके प्रिजनर्स दो और जो उनके पास हमारे अगर पुराने कोई प्रिजनर्स हैं तो उनको वापस ले लो. ये आज भी होता है, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स. ठीक है? या उनसे कोई फिदिया लिया जाए, रैंसम लिया जाए छोड़ने के लिए. अगर कोई वेल्दी फैमिली से, फॉर इंस्टेंस, अगर मक्का से या कहीं से अगर कोई वेल्दी फैमिली के लोग कैप्चर हो जाते थे बैटलफील्ड में, तो उनको वापस जब फैमिली को दिया जाता था तो दे कुड हैव टेकन वेल्थ. दैट आल्सो स्ट्रेंथन्स द मुस्लिम साइड ऑफ द आर्मी. ठीक है? ये उनकी हैसियत के हिसाब से है. अच्छा, अगर कोई फैमिली में नहीं है जो उनके पैसे दे सकता है, they've been made prisoners of war. Islam has amazing options. Islam doesn't put prisoners of war in concentration camps or torture cells. In Medina, मैं कह रही हूँ, आप सल्लम कितने forward thinking थे. He used to say, okay, what skill do you know? For a captured prisoner of war, he used to say, तुम्हें क्या आता है? तुम्हें जर्रे बनाना आता है, आर्मर बनाना आता है, या तुम्हें हैचवर्क का काम करना आता है, या तुम्हें क्ले पॉट बनाना आता है, या तुम्हें पढ़ना आता है, लिखना आता है, एनीथिंग. दिस इज द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. फॉर 3 years you will teach the people of Medina your art, your skill, और उसके बाद जाओ, हम तुम्हें फ्री कर देंगे. रहम नजर आ रहा है आपको, जस्टिस नजर आ रहा है इस्लामिक माशरे का. दे आर नॉट ब्लड थर्स्टी. ये गलत इमेज है कि टेररिज्म है और इस्लाम तो कहता है फाड़ दो और फट जाओ. ये नहीं है. दिस इज सो फॉरवर्ड थिंकिंग दैट यू कैन रिलीज प्रिजनर्स ऑफ वॉर बाय कैश और काइंड. ठीक है? देन सम वर मेड पार्ट ऑफ द मुस्लिम हाउस होल्ड. प्रिजनर्स ऑफ वॉर कैसे बनाते थे मुस्लिम हाउस होल्ड? या तो इनकी औरतों से शादी कर लेते थे जो प्रिजनर ऑफ वॉर बनकर आती थी. ठीक है? And this is a post-war reconstruction plan given by Islam. So you were not allowed to torture these with people, and you were supposed to give them their human rights. They were supposed to be integrated within your society, not kept on the outskirts. ठीक है? और prisoners of wars were distributed with माले गनीमत. ये slaves होते थे. अब माले गनीमत के साथ ये जैसे स्वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. फॉर इंस्टेंस जी, अब अगर सहाबा बैठे हैं या आप सल्लम बैठे हैं और उनके पास 50 स्लेव्स हैं, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, वो स्लेव बन जाते थे. ठीक है? ऑटोमेटिकली. अब वो स्लेव्स बनकर आ गए हैं तो उनको क्या करेंगे? उनको प्रिजन के अंदर नहीं बंद करेंगे. उनको कहेंगे, किसी साहबा को कहेंगे, चलो तुम्हारे घर में नहीं है नौकरानी, तुम इसको ले जाओ, तुम उसको ले जाओ, ये लड़का काम करने वाला है, इसको अपने फील्ड्स पे ले जाओ काम कराने के लिए. सो दे यूज्ड टू बिकम ह्यूमन लेबर. ठीक है? ह्यूमन रिसोर्स लेबर बनती थी ये. एंड दे वर ऑल्सो स्लेव्स. फिर उसके बाद जो इनका वली होता था, अच्छा, अगर इनका वाई, because the Muslim government is actually, I told you, a wali of any woman or any orphan whose wali is not alive.
automatically Muslim government is the one who decides this is the relationship. It's a personal legal relationship between the Muslim child or woman and the government. The government will automatically become a wali in the case where there is no wali. ठीक है, for this person. अच्छा, अब जो कनीज होती थी, कनीज यहाँ पे एक फोर्थ ऑप्शन क्या एक्सरसाइज किया जा रहा है कि जब कनीज स्लेव गर्ल को ओनरशिप में दे दिया गया, ठीक है, देन जब लीगल ओनरशिप आ जाती थी, अच्छा हम इसमें भी बहुत मसला होता है हमें ये समझने में, ये स्लेव गर्ल माल बनती थी, ठीक है, कैसा रिश्ता है माल के साथ, जैसा आपका, वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट अ स्लेव एंड आका वाज, बट आका मुंह से बात निकालता नहीं था, स्लेव यूज्ड टू से यस बॉस. स्लेव हमारे नौकरों की तरह नहीं होते थे, टेढ़े मेढ़े मुंह नहीं बनाते थे, आज मूड नहीं है, आज मैं ये नहीं कर सकती, आज मेरे सर में दर्द, इससे नहीं होता था. स्लेव वॉज कंप्लीट ओनरशिप. मालिक ने जो कहा, अगर मालिक ने कहा कि तुमने एक टांग पे खड़े रहना है 10 घंटे के लिए, वो एक टांग पे खड़ा रहेगा जब तक वो बेहोश होके गिर नहीं जाएगा. स्लेव की हिम्मत नहीं होती थी मालिक को ना क्वेश्चन करने की ना आंसर करने की. इट वॉज ऑलवेज यस बॉस. पहले इसको समझे, ये आपका स्लेव है, ठीक है ना. Like I told you, this discussion is to understand how it was done at that time, because it doesn't apply now. बाद में फिर अगर मुसलमानों की जंगें हुई, फिर if we get this silsila of slaves, sorry, 1 second. Why is this telling me that why is my meeting running out of time?